We will start shortly. Suhani, your audio is mute. Good morning, everyone. Yes. Good morning. We'll be starting shortly. There are 10 minutes to go. So I request everyone to be seated in a comfortable position and kindly keep yourself on mute. I hope I'm audible and visible as well. Yes. If you can just let me know by thumb. This is okay and this is not okay. Good morning, Shilpa ma'am. Welcome everyone. Starting shortly. लोग आ गए हैं, सभी ने इंस्ट्रक्शंस कल के देखे हैं, राइट? तो सभी एम्प्टी स्टमक है, सिर्फ पानी अगर पिया है तो लूकवार्म वाटर. यस, ट्रैक पैंट, टी शर्ट, मैट, सभी रेडी है. ओके, ऑल आर हैप्पी? ऑल आर हैप्पी? वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट, ग्रेट. यस, मेनी पीपल आर कमिंग. यस, वेलकम साई सर. वेलकम. गुड मॉर्निंग. आवाज येतो मॅम माझा? हो येतोय. ओके. भरपूर लोक जॉईन होत आहेत. आपण एक 2-3 मिनिटात सुरू करूया. 1-2-3 मिनट्स में शुरू करेंगे. हरिओम शिल्पा. हरिओम. सभी अपना ऑडियो म्यूट रखेंगे. ऑडियो सभी का म्यूट हो, सभी बैठ जाएंगे. 2 मिनट में ही हम शुरू कर रहे हैं. किसी को चेयर पे बैठना है, तकलीफ है कुछ तो चेयर पे भी बैठ सकते हैं. जिनको कुछ तकलीफ नहीं है वो नीचे मैट पे अपने बैठ जाएंगे. सभी पीठ से सीधे बैठने वाले हैं, सभी की गर्दन सीधी होगी और सभी आंखें बंद करके सेशन शुरू होने तक शांत बैठेंगे. अपने ब्रीदिंग को, अपने मन को शांत करेंगे. रिलैक्स, रिलैक्स. फील करेंगे रिलैक्सेशन. सुबह का समय, ठंडी हवा.
सभी का ऑडियो म्यूट है। सभी का शरीर सीधा बैठा है, लेकिन कोई भी कहीं भी स्ट्रेस नहीं है। ब्रीदिंग नॉर्मल है, मन शांत है। आगे के 15 दिन के लिए हम अपने आप को कमिट कर रहे हैं। खुशी है कि सब साथ में करने वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं। खुशी है कि सिखाने वाले भी बहुत लोग हैं, जिसमें कुछ बहुत एक्सपर्ट्स है, डॉक्टर्स है, तो इनका गाइडेंस हमें मिलने वाला है। तो जितना चाहे आप ले लो, जितना आपका बर्तन खाली होगा उतना आप उसमें भरने वाले हो। तो खाली हो जाएंगे विचारों से, खाली हो जाएंगे अननेसेसरी थॉट्स से, और जो भी अच्छी चीजें, पॉजिटिव चीजें आने वाली है उसे भर लेंगे। अब हम ओंकार और प्रार्थना की ओर बढ़ने वाले हैं। Shall I start? ऑडियो म्यूट करेंगे। सुहानी मैम सभी का ऑडियो म्यूट करेंगे प्लीज। यस्मिता मैम, Yeah. ओवर। Namaste, good morning, and very warm welcome to all of you from Yoga Darshan Training and Research Institute, Pune. So let's start with the prayers. We'll chant Omkar first, followed with Patanjali Stavan. So I would request all of you to sit in any meditative asana like Siddhasan, Padmasan, or Sukhasan. Whatever is comfortable for you, just go with that. Sit in any meditative asana. Your spine should be always straight in line with your head. Your shoulders broad, chest expand, so it will help to fill up the oxygen completely. And hands in Dhyana Mudra. Your first finger and thumb should be touching together. Place it on your सॉरी, फोन कॉल आया है, वो वापस आएंगे। हाथ की न्यान मुद्रा करके अपने घुटनों पर, अपने थाइस पर रख सकते हैं। सभी की आंखें बंद है। inhale and exhale. Get settled down yourself. Inhale deeply. We'll chant Omkar. We'll chant A, U, and Ma. Your Makar should be longer. Make a beautiful smile. Keep a beautiful smile on your face. Inhale. Inhale. Last Omkar, Makar should be longer. Inhale. Join your palms together. Do not open your eyes. Close to your heart. In Namaskar Mudra, near to your sternum. Patanjali Stavan. Inhale. Yogena Chittasya Padena Vacha Malam Sharirasya Cha Vaidyakena Vyopakarotam Pravaram
मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि. Rub your hands together gently. Place your palms on your eyes. With closed eyes, try to see the darkness behind your palms. Your gentle pressure on your eyes. Let your eyes to be completely relaxed. Try to focus your mind. Slowly and gently release the pressure. Slowly bow down. This Patanjali Stavan tells us, let's bow down to the Maharshi Patanjali, who has given the knowledge of yoga to purify your mind, the knowledge of grammar, bhasha, and of course the medicine, the knowledge of Ayurveda and medicine. So with this let's take great blessings from him and bow down. And Omkar chanting always helps us to focus your mind. So let's begin the session and let's start the sessions with Patanjali Yoga Sutra number 1, Atha Yoga Anushasanam. So on this note, means every day you have to be disciplined. Please log in before 5-10 minutes before. And I'm pretty sure you're going to take hands full of knowledge at the end of the session after 15 days. So be with us forever, just not for 15 days. Thank you. Over to you, sir. Sai, sir. Dr. Sai, are you there? Hello? Yes, he will start, Smita. Yeah, I yeah. request you to keep yourself on mute. Yeah. Sai, sir, you can unmute yourself. Yeah. नमस्कार टू ऑल. योग दर्शन ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से मैं डॉक्टर साईनाथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ. ये संस्था हमने योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी एंड ऑल काइंड ऑफ इंडियन मेडिकल साइंस का प्रचार और प्रसार करने हेतु हमने बनाई है. इसके माध्यम से ही आज हम फंडामेंटल ऑफ योगा ये कोर्स करने जा रहे हैं. ये कर रहे हम हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, आरोग्य के लिए. ये स्वास्थ्य संवर्धन के लिए हम जो कर रहे हैं, ये स्वास्थ्य की बहुत अच्छी व्याख्या आयुर्वेद बताता है. इसमें कहा गया है समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना स्वस्थ्य इति भिधीयते. इसका मतलब है जिस व्यक्ति के वात पित्त कफ आदि दोष समान हो, these are the vital forces in our body, ये समान हो, अग्नि समूह जो डाइजेस्टिव फायर हमारे शरीर में स्टमक में स्थित है वो अच्छा हो, सप्त धातुओं का पोषण अच्छा हो, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र ये वेल डेवलप्ड हो, ये सभी के साथ हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी अच्छा हो, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा मन, सभी इंद्रिय और आत्मा ये प्रसन्न हो, ऐसे व्यक्ति को हम स्वस्थ कहते हैं. तो यही हेल्दी आरोग्यपूर्ण बनने के लिए टू एनहांस आवर हेल्थ वी आर गोइंग टू परफॉर्म दिस कोर्स. इस कोर्स में मैं आपके सामने आई विल टेक दिनचर्या, दैट इज डेली रूटीन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या और जलनेति एंड कपालभाति. ये सब चीज़ें हमारे डेली रूटीन में बहुत फायदेमंद होती है हेल्थ को एनहांस करने के लिए. इसके साथ आज डाइट का भी बहुत बड़ा इशू है. तो आइडियल डाइट, योगिक डाइट, आयुर्वेदिक डाइट जो हम अच्छी तरह से और इजीली फॉलो कर सकते हैं, ये भी हम इसमें बताएंगे. आज कोविड-19 पूरे विश्व के लिए खतरा बनकर खड़ा है. इसके लिए भी क्या प्रिकॉशन लेने हैं, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स है, हमारे शास्त्रों में क्या बताया है, एलोपैथी में क्या बताया है, योग में क्या बताया है, आयुर्वेद में भी जनपदोध्वंसक व्याधि नाम से इसे बहुत अच्छी तरह से समझाया है. ये सब का हम विवरण करेंगे और इसी के साथ कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ
कुछ विटामिन्स, इसके बारे में भी बात करेंगे, जो कमी रहती है हमारे बीच में, उसके लिए भी हम बात करेंगे और एक अच्छा सेहत बनाने की ओर हम अग्रसर हो जाएंगे। और इसके बाद मिसेस शिल्पा मैम खुद के बारे में बताएंगी और वो क्या पढ़ा रही उसके बारे में बताएंगी। धन्यवाद। थैंक यू सर। यस, नमस्ते, मेरा नाम शिल्पा अर्जुन वाडकर है। इस कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने उत्साह दिखाया, इंटरेस्ट दिखाया, इसके लिए ये आप सभी की वजह से ये कोर्स शुरू हो रहा है, तो आप सभी को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। अब थोड़ा सा जानेंगे कि इस पार्ट में सर ने ऑलरेडी बताया है, डॉक्टर साईनाथ सर, कि ये संस्था क्या है और कोर्स कैसा रहेगा। मैं इसमें क्या सिखाने वाली हूँ, जस्ट मैं बता रही हूँ कि इसमें मैं थोड़ा पार्ट सूक्ष्म व्यायाम का लेने वाली हूँ, जो हमारा कल का पहला सेशन रहेगा, सूक्ष्म व्यायाम, जिसमें हम देखेंगे छोटे छोटे जॉइंट्स, लिगामेंट्स आपके बहुत समय तक एक्सरसाइज या आसन कुछ प्रॉपर न होने की वजह से स्टिफ हो जाते हैं, तो उनको हम रिलीज करने वाले हैं। हमारे बाकी जॉइंट्स, मसल्स, उनको भी हमें रिलीज करना है, जिससे आगे जो भी आसन हम सीखने वाले हैं वो हम आसानी से कर पाएंगे। आपका ब्रीदिंग भी प्रॉपर होने लगेगा। ओके, तो सूक्ष्म व्यायाम। उसके बाद में जो सेशन रहेंगे उसमें थियोरी के 2 पार्ट्स में लेने वाली हूँ, जिसमें एक रहेगा पातंजल योग और एक रहेगा हठ योग। दोनों का इंट्रोडक्शन रहेगा। पातंजल योग जो मेनली आपके मन के ऊपर काम करता है, क्योंकि मन आजकल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट सभी को समझ में आ रहा है, क्योंकि स्ट्रेस एक मेजर फैक्टर है जो आपके इम्यूनिटी को हार्म कर रहा है। इसके साथ साथ आपके शरीर में जो भी बीमारियां या तकलीफें हैं वो सब आपको मन ही लाके देता है। तो उसके ऊपर काम करना कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये जानना, और कैसे काम करना है वो हम उसमें सीखने वाले हैं। सिर्फ गुस्सा नहीं करना, ऐसा हम सोचते हैं लेकिन फिर भी गुस्सा आता है, तो एक्चुअली क्या करना चाहिए। तो इस तरह से हमारी जो तकलीफें है वो दूर करने के लिए महामुनि पतंजलि के साथ हम मन के ऊपर काम करना सीखेंगे। उसके बाद में हठ योग के बारे में हम जानेंगे। जो भी आसन, प्राणायाम, शुद्धि क्रिया हम करते हैं वो सब जहां से आए हैं वो है हठ योग। तो उसके बारे में भी हम जानेंगे कि वो क्या है, कैसे आया, कहाँ से आया, उसमें हमें सीखने के लिए क्या है, हम डेली रूटीन में ये सारी चीजें कैसे ला सकते हैं, ये हम इसमें देखने वाले हैं। और थोड़ा सा पार्ट जो योगा फॉर वुमनहुड है, लेकिन वो बाकी सभी के लिए भी है, ओवरऑल सभी वो आसन कर सकते हैं, वो पार्ट भी मैं लेने वाली हूँ। तो इस तरह से ये 2-3 पार्ट्स मेरे पास है, जो कि मैं प्रयास करूंगी आपको जितना ज्यादा हो सके डेली रूटीन में आप इस्तेमाल कर सको, वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाओ। ओके, धन्यवाद। अब मैं प्रतीक को बुलाऊंगी। यस, मिस्टर प्रतीक। थैंक यू मैम, वेलकम ऑल। मेरा नाम प्रतीक अमनजी है। फर्स्ट आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है एंड MBA मेरा कंप्लीट हुआ है मार्केटिंग में, लेकिन योग का मेरा पैशन है। तो फ्रॉम लास्ट 2 years आई एम इन योग एंड ऑल दिस विद पीपल। तो इसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ सूक्ष्म व्यायाम एंड आसन। तो सूक्ष्म व्यायाम में जैसे अभी शिल्पा मैम ने बताया कि हम जो स्मॉल जॉइंट्स है, मसल्स है, इनको रिलीज करेंगे, क्योंकि बिफोर डूइंग एनी आसन हमें रिलीज करना होता है। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम ब्रीदिंग के साथ करेंगे, क्योंकि कैसे जब भी हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, जैसे कि आप हाथ हिलाते हैं सिंपल, तो इसमें हमें विद ब्रीदिंग करना है, क्योंकि ब्रीदिंग इज द मेन कंपोनेंट ऑफ अ सूक्ष्म व्यायाम एंड दिस सूक्ष्म व्यायाम आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कोई भी बीमारी है आपकी, तो ये सिर्फ सूक्ष्म व्यायाम से भी मोर देन 50% बीमारी आपकी सिर्फ सूक्ष्म व्यायाम से ठीक हो सकती है। जैसे कि आप में से बहुत सारे IT प्रोफेशनल्स होंगे या फिर बहुत सारे लोगों के ऑफिस जॉब होंगे, तो यू पीपल हैव टू सिट फॉर लॉन्ग आवर्स इन ए चेयर। तो इसमें सूक्ष्म व्यायाम आपकी बहुत मदद करेंगे। दिन में आप ये कभी भी कर सकते हो, आफ्टर 2 hours 3 hours, जब भी आप एक 5 मिनट का ब्रेक लेंगे तो ये सूक्ष्म व्यायाम आपको सिखाए जाएंगे। सूक्ष्म व्यायाम का और एक अंग है प्राणिक एनर्जी। जैसे कि जो प्राणिक एनर्जी है, हमारा प्राण है वो यहाँ पे जाके बैठता है। जैसे कि हमारे जॉइंट्स है, लिगामेंट्स है, जो ज्यादा मूव होते हैं, बहुत सारी चीजें, तो यहाँ पे ये प्राणिक एनर्जी जाके बैठती है और वहां से बीमारियां चालू होती है। तो ये हम आपको सिखाएंगे कि इसमें हमें कैसे काम करना है। और इसके साथ ही मैं आपका आसन पार्ट भी लेने वाला हूँ, जिसमें कि हर आसन के आपको कॉन्ट्राडिक्शंस बताए जाएंगे, मेनली कैसे करना है, अलाइनमेंट, ऑल दिस थिंग्स, और ये सब आपको विद ब्रीदिंग सिखाया जाएगा। तो यू कैन वर्क ऑन योर मेंटल स्ट्रेंथ ऑल्सो एंड फिजिकल स्ट्रेंथ ऑल्सो। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, कोई
आप में से एजेड है तो उन्हें कौन से आसन करने हैं नहीं करने, क्योंकि जनरली हम इंटरनेट पे देखते हैं या जो भी देखते हैं तो इसमें सिर्फ आसन सिखाए जाते हैं, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि जिन्हें ये आसन प्रोहिबिटेड है, जिन्होंने ये आसन नहीं करने चाहिए, क्योंकि हर एक आसन अपने लिए नहीं है। तो ये जो नॉलेज है ये आपको डिलीवर किया जाएगा और ये हिसाब से आपको सिखाया जाएगा। थैंक यू सो मच। Thank you, Pratik. I will request Smita ma'am to introduce her topic. Smita ma'am, over to you. You're on mute, ma'am. Once again, namaste. Myself Smita. By profession, I am interior designer consultant for hotels, hospitals, hospitality clinics, and many more commercial, corporates, and residential interiors. Of course, landscaping also covers into that. And yoga is my passion. I'm a professional anchor too, and I'm going to share my knowledge in whatever knowledge I have about asana and pranayama, which is very important actually. So by practice of asana, it regulates the body secretions like hormones, then breathing practices. Because each and every asana we are going to perform with a great breathing practice. So with that, you will increase your lung capacity, you will strengthen your bones, muscles, everything with focusing on breathing. That is very important. So each and every time will be telling you like inhale and exhale, just concentrate on that and learn those great practices of breathing practice, which will improve your lungs and the total body secretions. So, and of course, it creates a beautiful harmony between your mind and body. So it boosts your energy levels as well. So strengthens your bones and muscles. And followed with pranayama. So wardrobe में से toys निकाल ले जाओ. ऑडियो म्यूट रखेंगे प्लीज सभी. Smita ma'am, you are on mute. So you didn't listen anything? Half, ma'am. Last 30 seconds, you went on. I don't know now where I was. So Asin, I have already, Shilpa ma'am and Pratik also explained what is going to be in their Asan, which creates a beautiful harmony between your mind and body. And it's beautify not only your body, but the mind as well. And focusing on the breathing practices, we are going to perform each and every Asan, each and every Sukshma Vyayam will be with the breathing practices, which will improve your lung capacity as well. So followed with the pranayama. Pranayama is controlling on your breath, but in typical manner. I mean, there is some proportion of controlling on your breath because it says chale vate chale chittam nischale nishchalam bhavet. So that says, like, tells us, the ancient Rishi Muni told us, like, when your prana moves, your chitta also moves. So how to control and focus and purify your mind and body as well. So it's really a great combination of asana and pranayama, which I'm going to share that knowledge with you all. So thank you so much. Thank you, Smita ma'am. That was a very nice introduction. So I myself, Suhasini Ozhade. I'm YCB certified level 2 yoga teacher. So I'm going to cover Surya Namaskar. Everyone must have heard about Surya Namaskar, those who are practicing yoga also and those who are not practicing also.
So basically, Surya Namaskar is also called as a ultimate asana. Ultimate asana is like a Sarvangin asana. So it works on every organs, every system of your body. So there are myths about Surya Namaskaras. So yes, it is true that it helps a lot. If you practice few Surya Namaskar in your daily life, it's gonna help you a lot. Also, there are some limitations as well. There are some contradictions as well. If you practice Surya Namaskar with wrong posture or with wrong breathing, so they will give you little lifelong injuries as well. So it is very important to follow right practices of Surya Namaskara with proper breathing. So for example, in Surya Namaskar step 2, we will be seeing in depth. So it is very important to take care of your neck while just stretching our hands up. It is very important to take care of neck. So it should not drop back a lot. So if you're not doing it or practicing it in a correct way, so obviously over the period of time you will have little problems with your spondylitis and neck. So overall, Surya Namaskar are very beneficial. That's why we have taken this topic in this 15 days course. But it is also important to understand what should be avoided. What are the common mistakes while doing Surya Namaskara to get 100% of benefit. So I will be covering basic Surya Namaskar, 12-step Surya Namaskar, and also I'm going to cover chair Surya Namaskar also with proper process of doing transition from one step to other step and with your breathing as well. So I will be taking these two topics, Surya Namaskar, normal Surya Namaskar and chair Surya Namaskar. So this is it. I will request Sheetal ma'am to introduce her topic. Thank you all. Good morning, all, and warm welcome all of you in the family of Yoga Darshan Research and Training and Research Center. So myself, Dr. Sheetal Naikwade, I am a member of Yoga Darshan family, as well as I am working as an associate professor at MBA College in DY Patil University, Navi Mumbai. I am a medico professional as well as management professional. Though I am a medico, but I am also a disciple of yoga like you all. So I'm going to brief you about the healthy womanhood. So majority of you are thinking that why this topic? As we know that physicians are very well, like they are having knowledge of basically what your body does and what your mind is thinking. So basically, I want to inspire each and every woman of this family, like those who are now a disciple and participants of this Yoga Darshan, as well as Yoga Darshan members, that they should, every female should love their body, whatever it might be, of any size or any shape. And for loving your body, you should know about the physiology, that is functioning of your body, how your body functions. And basically what happened, generally women or females in the family, they are ignoring their health. How, like they are taking care of their entire family since they are waking up in the morning till the end of the day, but they are keeping themselves aside this frame. So basically I'm going to of the family of that female, that how their body functions, then how the hormonal balance takes place in the body, how to take care of their own health, like how to take care of breast health, then their cervical health. Then nowadays we can see a lot of women are facing problem like PCOD, that is polycystic ovarian syndrome, even the menopausal syndrome. Even the teenagers has some problems in their pubertal age of hormones, like there are a lot of teenagers, they are nowadays suffering from thyroid abnormalities and the menstrual disorders. So overall I am going to take all these topics, and I want to quote for today, that please do remember one quote,
that your body hears everything what your mind says. So you should now keep in your mind that stay fit, stay healthy, and stay safe in this entire COVID situation. Thank you so much. Suhani, Thank you, Sheetal ma'am. Thank you, Sheetal ma'am. I will request Harish sir to proceed ahead. Thank you. Yeah. Namaste everyone. Good morning. Hari Om. तो सबसे पहले हम स्थिर बैठेंगे, स्पाइन स्ट्रेट, चिन पैरेलल टू ग्राउंड। आधा घंटा हो चुका है, हम इसी तरह बैठे, तो आप कंफर्टेबली बैठ जाइए। यहाँ पे मैं मेरा परिचय करने के लिए हूँ। मेरा नाम हरीश चंद्र टेमगिरे है। मैं MM योगा कर चुका हूँ, RYT सर्टिफाइड अष्टांग विन्यासा ट्रेनर। और यहाँ पे जो मैं सिखाने वाला हूँ, जो विषय है वो मेरे लिए बहुत ही सिंपल विषय है, जो है कंक्लूड करना और टेक अवे सेशन। तो आपने देखा रहेगा कि सभी डॉक्टर्स, PhD होल्डर और जो इस विषय में जो योगा थेरेपिस्ट है, ऐसे सभी टीचर्स यहाँ पे हैं। तो योग दर्शन जो है, योग दर्शन एक ट्रेनिंग और एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। कुछ दिन पहले एक 6 महीने का कोर्स शुरू किया जिसका नाम था चिकित्सा। ये शुरू करने के बाद बहुत सारे लोगों को उसका बहुत अच्छी तरह फायदा हुआ। 18 मई से उसकी शुरुआत हुई। इसके सारे एडमिशन फुल हो गए, मॉर्निंग सेशन, इवनिंग सेशन। उसके बाद बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि 6 महीने हमारे लिए बहुत है, कुछ ऐसा कोर्स शुरू किया जाए कि जो सबके लिए इजी हो। आज हमारी एक टेंडेंसी बन चुकी है कि सर दर्द है या कुछ पेन है तो हम जाके पेन किलर लेते हैं। तो आज एवरीथिंग फास्ट फूड का जमाना है, तो सबको इमीडिएट चाहिए। तो सब ने बैठ के एक ऐसा कोर्स डिजाइन किया जो 15 दिन का हो, सबके लिए समय भी उचित हो, जैसे 7:30 to 8:30 जो सही समय है योग के साधना के लिए। और 15 दिन में हम सब कुछ ये कवर करेंगे। तो इसके लिए अगर 15 दिन लगते हैं तो ये कोर्स डिजाइन किया जिसमें कोई भी हिस्सा ले सकता है। और इसका आउटपुट ऐसा हो कि आज हमने देखा कि कोविड एक हमारे लिए आई ओपनिंग इवेंट है। मैं इसको इवेंट कहूँगा क्योंकि ये जो हुआ है उसका कारण अगर हम देखेंगे तो उसका रूट कॉज अगर हम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये सारी हमारी देन है, जो हमने जो किया हुआ है उसका ही वो अभी बुमरैंग हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम बाहर की स्थिति तो नहीं बदल सकते, और फ्यूचर में आने वाली बहुत सारे ऐसे व्याधियां भी होगी जिसके कारण हमें इससे सफर होना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आज में वो है कि हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो। तो इम्यूनिटी हम जब कहते हैं तो इम्यूनिटी ऐसा कोई मेजर नहीं है कि जैसे हीमोग्लोबिन या हम CD, B12 या WBC काउंट जैसे हम गिनते हैं या उसका एक मापक है। वैसे इम्यूनिटी का मतलब एग्जैक्टली क्या? अगर आप इम्यूनोलॉजी पढ़ोगे तो पता चलेगा हमारे शरीर में पहले से ही इम्यूनिटी डेवलप हो या इम्यूनिटी का जो एक मैकेनिज्म बना के रखा है वो विश्व का सबसे अच्छा तंत्र है। सिर्फ हमें क्या करना है, उसको अच्छे से मेंटेन करना है। परंतु सबसे बड़ा यहाँ पे एक है जो हमारे 3 शरीर माने जाते हैं, जो स्थूल शरीर जो हमें सबको दिखता है, और उसके अंदर जो है सूक्ष्म शरीर जिसको हम अंतःकरण चतुष्ट भी आता है, और उसके ऊपर जो है कारण शरीर जिसका सबसे बड़ा रोग है वो है अविद्या। और बहुत सारी चीजें हमें पता ही नहीं कि हमारा जो पूरा शरीर है वो कितना दिव्य है या उसमें कितनी सारी यंत्रणाएं चलती है। अगर हम उसका सही से उपयोग करेंगे तो जैसे आयुर्वेद ने कहा कि हम 100 साल तक जी सकते हैं, और सिर्फ 100 साल तक जी नहीं सकते तो एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो उसके लिए जो एक हमें ज्ञान की आवश्यकता रहती है या एक अवेयरनेस रहता है, वो अवेयरनेस कैसा मिले लोगों को, क्योंकि उसके लिए जो साधन है वो हमारा शरीर है, वो सबके पास है। साध्य भी हमें पता है कि हमें निरोगी रहना है। अभी उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो हमें जानकारी। तो इस 15 दिन में आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिलेगी, जिस जानकारी से बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं। आप हो सके तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना हो सके आप नोट्स निकालो। दूसरा एक ध्यान में रखना है कि हमें यहाँ पे आसन सिखाए जाएंगे, प्राणायाम सिखाए जाएंगे। योग यानी अष्टांग, यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसमें जो बाह्य रंग साधना है, यम, नियम, आसन और प्राणायाम, ये हमें करने पड़ते हैं।
अंतरंग साधना जो है वो हमारी, जब हम एक बाह्य रंग साधना जब हमारी खत्म हो जाती है या उसके आगे हम जाते हैं, तो वो एक ऑटोमोड जैसा हम में से शुरू हो जाती है अंतरंग साधना। तो पहले जो 4 यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, प्रत्याहार का थोड़ा अंश वो थ्योरी में आएगा और बाकी चीजें भी हम थ्योरी में सिखाएंगे। ये करते समय एक अष्टांग का पूरा इंट्रोडक्शन आपको मिलेगा। सभी ने इंट्रोडक्शन दिया कि सब्जेक्ट में क्या क्या कवर होगा। और 15 दिन के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हर कोई, जैसे आप देखते हो कि हम गणपति अथर्वशीर्ष कहते हैं, उसके बाद हम फलश्रुति कहते हैं। फलश्रुति का अर्थ है कि उसका फल क्या होने वाला है। या फिर हम जब सत्यनारायण की पूजा करते हैं तो उसके बाद हम उत्तर पूजा करते हैं। तो हर चीज में हम एक टेक अवे या कुछ ना कुछ देखते हैं। तो इसका टेक अवे सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें क्या उसके बाद लाभ होगा, हमें यानी हमारे पूरे शरीर को। और जब कोई लाभ होता है तो वो एक शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, एक लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। ये जो लाभ है वो आपको बहुत दिन तक रहेगा, यहाँ तक कि आप अगर इसको कंटिन्यू करोगे, तो जब तक आप कंटिन्यू करोगे 15 दिन आप सीखोगे और उसके बाद यही शेड्यूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जीवन में आपकी इम्यूनिटी हो या स्वास्थ्य हो वो हमेशा अच्छा रहेगा। सिर्फ ध्यान ये देना है कि 15 दिन के बाद आपको वो कंटिन्यू करना है। आपकी कोई भी क्वेश्चन हो तो इसके लिए आपको डूज एंड डोंट्स की एक लिस्ट आएगी, वो लिस्ट में आपको बताया जाएगा कि आपको क्वेश्चन कब पूछने, क्या लिखना है। दूसरा मैं खुद एक बताऊंगा कि सभी आसन जो है वो कोई भी कर सकता है, फिर भी जो हम एक रूल हमेशा बताते हैं, लिसन टू योर बॉडी, रिस्पेक्ट टू योर बॉडी, तो वो आपको ध्यान रखना है। और फिर सारी कोई भी प्रश्न हो, कोई प्रश्न अगर आप ग्रुप पे भी पूछ सकते हो ताकि सभी को उसका फायदा हो सके। तो ओवरऑल ये पूरा 15 दिन में आपको क्या टेक अवे रहेगा 15 दिन के बाद, और 15 दिन में आपको क्या मिलेगा, ये सभी जो 7 टीचर्स है उन्होंने सबने आपको बताया। तो मेरा इंट्रोडक्शन में यहाँ पे पूर्ण विराम देता हूँ। धन्यवाद। Thank you, Harish sir. Now I will request you only to take us ahead to Sukshma Vyayam and a little bit Asan practice today. Over to Harish sir. Okay. तो अभी हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। पहले 30 मिनट हमारे इंट्रोडक्शन हो चुका है। अभी नेक्स्ट 30 मिनट जो हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, प्रतीक जो है उन्होंने बताया कि सूक्ष्म व्यायाम की आवश्यकता कितनी होती है। सबसे पहले जो हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे उसका मैं 1 मिनट में इंट्रोडक्शन देता हूँ, जो आज करने वाले हैं। हमें सबसे महत्वपूर्ण है हमारे शरीर में लंबर, देन नेक, शोल्डर, ये जो इसमें सबसे ज्यादा स्टिफनेस रहता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 9 to 5 जॉब करते हैं, बहुत समय बैठना पड़ता है। तो उसके लिए हमें आवश्यकता है कि हमारे शोल्डर और नेक इस रीजन को एड्रेस करने के लिए। तो आज हम उसके लिए सारे व्यायाम करेंगे और कुछ व्यायाम हम एंकल के लिए भी करेंगे, घुटनों के लिए भी करेंगे। तो 20 मिनट्स में हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे और फिर लास्ट के जो 10 मिनट्स है उसमें फिर प्रार्थना एंड क्लोजिंग जो आसन है या प्राणायाम है वो। ओके, तो सबसे पहले हमें खड़ा होना पड़ेगा। कोई भी सभी लोग समस्थिति, सबसे पहले मैं आपको समस्थिति बताता हूँ जो महत्वपूर्ण है। दोनों पैर जमीन के ऊपर, स्थिरता, पैरों के अंगूठे, पैरों की सभी उंगलियां हल्की से आपको ऊपर उठानी है। दोनों पैर जमीन पे स्थिर, एडिया से लेके 4 फुट समान भार, समान बल रखना है दोनों पैरों पे। एंकल, काफ मसल, नी स्लाइटली टाइट, जोर से नहीं खींचना है, सिर्फ उसे लूज नहीं छोड़ना है, ये ध्यान रखना है। क्वाड्राइसेप, हैमस्ट्रिंग, इनर थाई slightly tight. Then squeeze your buttocks and roll back your shoulder, chin parallel to ground, and then आपके सभी उंगलियां फिर से पैरों पे रखिए, chin parallel to ground, AD with your heel, then hip, shoulder and ear. ये सभी एक ही रेशा में। Concentrate on your breathing. श्वसन पे ध्यान दीजिए। अभी हम एक छोटी सी टेस्ट लेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे, पहले आंखें बंद करनी, हमें आंखें बंद कीजिए और आंखें बंद करने के बाद हमें ध्यान ये देना है कि एंकल, नी
वेस्ट एंड शोल्डर एंड नेक। यहाँ पे कहीं पे भी हमें फोल्ड नहीं करना है या लूज नहीं छोड़ना है। और उसके बाद आंखें बंद करने के बाद आपका बैलेंस सही रहता है क्या नहीं, यानी आप आगे जा रहे हो या थोड़ा पीछे जा रहे हो। अगर आगे जा रहे हो तो आप एडी को थोड़ा सा प्रेस कीजिए, अगर आप पीछे जा रहे हो तो फोरफुट को थोड़ा सा प्रेस कीजिए और शरीर की स्थिरता देखिए। शरीर को स्थिर कीजिए और पूरा ध्यान आपके श्वसन के ऊपर। जैसे कोई भी इमारत की नींव होती है वैसे समस्थिति है सभी आसनों में, तो सूक्ष्म व्यायाम हो आसन हो उसमें समस्थिति बहुत आवश्यक है। ना ओपन योर आई, अपनी आंखें खोलिए, chin पैरेलल टू ग्राउंड। आपकी दृष्टि भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो कोई भी एक ऑब्जेक्ट से सामने हो। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग। दूसरी टेस्ट हम लेंगे, उसमें श्वसन पे ध्यान केंद्रित करना है। समस्थिति में हम ध्यान केंद्रित करना है कि जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास लेते समय हम लोअर लंग्स पूरा भर देते हैं तो हमारा पेट आगे आना चाहिए। अगर आगे नहीं आया चलेगा, परंतु पेट अंदर नहीं आना चाहिए श्वास लेते समय। इनहेल, एक्सहेल। और जब एक्सहेल करेंगे यानी श्वास बाहर छोड़ेंगे तब पेट अंदर जाना चाहिए, ना कि बाहर आना चाहिए। अगर ये उल्टा हो रहा है यानी श्वास लेते समय अगर पेट अंदर आ रहा है तो ये हमारा बैड ब्रीदिंग है, हमें वो करेक्ट करना है। तो इनहेल और एक्सहेल। अभी पूरा शरीर स्थिर है और पूरा ध्यान हमारा श्वसन पे है, तो हमें ऑब्जर्व करना है कि इनहेल और एक्सहेल करते समय हमारा पेट इनहेल करते समय पूरा श्वास लेने के कारण डायफ्राम नीचे चला जाएगा, पेट बाहर आएगा। नहीं आया चलेगा, परंतु अंदर नहीं जाना चाहिए। अंदर जाना यानी आप गलत करें। एक्सहेल करते समय पेट को अंदर खींचते हुए श्वास को बाहर छोड़ना है। इनहेल एंड एक्सहेल। ये छोटी छोटी बहुत महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन है जो हम भूल जाते हैं। समस्थिति में ये सारी चीजें हमें करेक्ट करनी पड़ती है। शरीर में समान भार, दृष्टि और श्वसन, ये होने के बाद फिर हमें इसके बाद जो भी हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे हमें श्वसन पे भी ध्यान देना है। चीन डाउन नहीं करनी है। सबसे मोबाइल के कारण, लैपटॉप के कारण हम 8 घंटे काम करते हैं लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे, इसके कारण हमारा चीन हमेशा ड्रॉप रहता है। तो चीन पैरेलल टू ग्राउंड। सर थोड़ा आपका वॉल्यूम ठीक नहीं आ रहा है हमको। ओके, अभी आ रहा है सर? हेलो। हाँ जरा थोड़ा आप मेरे के लिए थोड़ा नियर टू द मोबाइल रख दीजिए so that we will able to see. हाँ अभी आ रहा है सर? हेलो। Yes, sir, you're audible. Absolutely. Okay. Now, समस्थिति में ही हम now raise your hand, inhale, श्वास लेते समय अभी यहाँ पे chin parallel to ground, दोनों भी हाथ जमीन को समांतर, एडी, हिप, शोल्डर एंड ईयर इन वन लाइन, दोनों हाथ जमीन को समांतर, chin parallel to ground and concentrate on your breathing and hold. Again, deep inhale and exhale. Now, turn your hand, palm facing towards sky. हथेलियां आकाश की तरफ. Now, inhale, raise your hand. अभी हाथों को ऊपर खींचते हुए सबसे पहले हमें कमर से लेके लास्ट रिप तक, देन लास्ट रिप टू शोल्डर, 2 खिंचाव ऊपर की तरफ. इसमें हमें चीन को एंगेज नहीं करना है. चीन पैरेलल टू ग्राउंड. कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग एंड होल्ड. जितना अंतर हमारे शोल्डर में है उतना ही हमारे दोनों हाथों में है, पाम फेसिंग टू ईच अदर. यहाँ पे फिर से हमें देखना है कि हमारी एरिया, हिप, शोल्डर एंड ईयर इन वन लाइन. Concentrate on your breathing. Don't drop your chin. Breathe. Concentrate on your breathing. 5, 6, 7, 8, 9. Deep inhale and exhale very slowly, very gently. And again, Samasthiti. Roll back your shoulder. Concentrate on your breathing. Chin parallel to ground. हमेशा हमें चीन पे ध्यान देना है. चीन पैरेलल टू ग्राउंड रखनी है. ब्रीथ.
Now raise your hand. Inhale. Interlock your fingers and palm facing outside. And stretch. Again, chin parallel to ground. शरीर में 3 खिंचाव हो, कमर से लेके लास्ट रिब, फिर लास्ट रिब टू शोल्डर एंड शोल्डर टू फिंगर टिप. Stretch. Heel to hip alignment. Concentrate on your breathing. Breathe. 1, 2, 3, 4, 5. Deep inhale and exhale. Exhale करने के बाद दोनों हाथ पीछे की तरफ लेके जाइए. Chin parallel to ground. Interlock your fingers and then open your shoulder and hold again. Chin, hip and shoulder in one line. कंधों को खुला रखिए. Chin parallel to ground and breathe. 1, 2, 3, 4, 5. Deep inhale. Exhale. Relax and Samasthiti. Roll back your shoulder. Now again, raise your hand. Inhale. अभी हथेलियां सामने की तरफ, दोनों अंगूठे एक दूसरे को टच हो गए. Tip of your thumb will touch to each other. Palm facing. दोनों भी हाथ सामने की तरफ. सबसे महत्वपूर्ण है chin. Chin parallel to ground. Heel to hip alignment. Concentrate on your breathing. Breathe. बहुत बार यहाँ पे हम श्वास रोक के रखते हैं. कोई भी स्थिति में श्वास रोकना नहीं है. अगर शोल्डर पे आपको ज्यादा तनाव महसूस हो रहा है तो हाथों को, एल्बो को थोड़ा रिलैक्स छोड़ दीजिए. Breathe. 4, 5. Deep inhale. Exhale. दोनों हाथ समस्थिति में. यहाँ पे फिर से हमें chin parallel to ground and hip to ear. ये अलाइनमेंट, इस पे ध्यान देना है हमें. Now, shoulder. Lift your shoulder. Inhale. कंधों को ऊपर लेके आइए और रोल बैक कीजिए. पीछे की तरफ रोल बैक कीजिए. फिर से नीचे. Inhale. Lift your shoulder. Exhale. Roll back. Inhale. Lift your shoulder. Exhale. Roll back. 5 times. इसमें chin parallel to ground, इसका ध्यान रखना है. Continue. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Then opposite side. Inhale. Exhale. अभी शोल्डर ऊपर लेके आइए और सामने से आगे लेके जाइए. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale and relax. Concentrate on your breathing. 3 breathe. Now, दोनों हाथ सामने. Interlock your fingers, palm facing outside. अभी ध्यान रखना है कि दोनों ही हाथों से, यानी दोनों हथेलियों से हमें आगे प्रेस करना है. हथेलियां प्रेस करनी है ताकि शोल्डर से लेकर हथेलियों तक आपको स्ट्रेच होगा और उसी समय हमें आगे नहीं जाना है. हील से लेके ईयर तक एक ही रेशा में शरीर हो. Concentrate on your breathing. श्वास में समानता, श्वास रोकना नहीं है. Breathe. 1, 2, 3, 4, 5. Now, inhale. श्वास लेते हुए हाथों को स्लोली, चिन ड्रॉप नहीं करनी है. हाथों को ऊपर लेके जाइए. जब आपके नेक पे तनाव आएगा तो रुकना है. अदरवाइज कान के रेशा में हाथ को लेके जाइए. Chin parallel to ground. Chin drop मत कीजिए. And breathe. 1, 2, 3. Now, while inhalation, श्वास लेते हुए inhale and chin up. Just chin up कीजिए. दृष्टि दोनों हाथों के बीच में and hold. जो शरीर में खिंचाव है वो आपके कमर से लेके लास्ट रिब टू योर शोल्डर. दो खिंचाव हो और दृष्टि दोनों हाथों के बीच में and hold. 1, 2, 3. Exhale. Chin parallel to ground. और दोनों हाथ भी रिलीज कीजिए. दोनों हाथ पीछे लेके जाइए. इंटरलॉक योर फिंगर. Chin parallel to ground. Open your shoulder and hold. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale and slowly relax.
दोनों हाथ समझ चुके हैं. रोल बैक योर शोल्डर. नाउ रेज योर हैंड. दोनों हाथ जमीन को समांतर, हथेलियां जमीन की तरफ. नाउ हथेलियां आकाश की तरफ. टर्न योर हैंड, योर पाम्स टुवर्ड्स स्काई. chin पैरेलल टू ग्राउंड. यहाँ पे अभी हमें शोल्डर के ऊपर कोई भी हलचल नहीं करेंगे. नाउ इनहेल, टर्न योर हैंड, हथेलियां आकाश की तरफ. एक्सहेल, टर्न योर हैंड, हथेलियां आपकी जमीन की तरफ. कंटिन्यू. इनहेल, और जो हमें टर्न करना है वो हमें शोल्डर से करना है. ध्यान दीजिए, फ्रॉम रूट ऑफ योर शोल्डर, नॉट फ्रॉम एल्बो. लास्ट राउंड. इनहेल, एक्सहेल. नाउ इनहेल. नाउ अभी हाथों की सभी उंगलियां आपके शोल्डर के ऊपर रखें. फिंगर टिप्स ऑन योर शोल्डर. यहाँ पे ध्यान रखना है कि एल्बो को ड्रॉप नहीं करना है. फ्रॉम योर शोल्डर टू योर एल्बो इन वन लाइन, पैरेलल टू ग्राउंड. डोंट ड्रॉप योर chin पैरेलल टू ग्राउंड एंड होल्ड. 1 2 3. डीप इनहेल, एक्सहेल. दोनों एल्बो को टच कीजिए, एल्बो से लेके शोल्डर तक, पैरेलल टू ग्राउंड. नाउ इनहेल and exhale. Again, inhale and exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale and hold. Elbow to your shoulder in one line, parallel to ground. Heel to ear alignment. Now, again, touch your elbow to each other. अभी हमने सामने से पीछे गए थे, अभी हमें एल्बो पीछे लेके जाने. इनहेल, एक्सहेल. इनहेल, एक्सहेल. इनहेल, एक्सहेल. 5 टाइम. लास्ट राउंड. इनहेल, एक्सहेल एंड देन दोनों हाथ जमीन को समांतर, हथेली आकाश की तरफ. डीप इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए दोनों भी हाथ सामने, दोनों भी हाथ सामने. स्लाइटली चिन अप एंड ब्रीथ. हाथों को रिलैक्स कीजिए. पूरा रक्त संचलन आपके फिंगर टिप्स की तरफ होता है, इसलिए रिलैक्स कर दीजिए हाथों को. जस्ट चिन अप एंड ब्रीथ. 1 2 3. नाउ चिन डाउन. दोनों हाथ सामने रखिए. नाउ हथेलियां जमीन की तरफ. क्रॉस योर बोथ द हैंड. राइट हैंड आपका नीचे आना चाहिए, लेफ्ट हैंड ऊपर आना चाहिए. नाउ बेंड फ्रॉम योर एल्बो. जैसे गरुड़ासन में हम हाथों की स्थिति होती है, मुद्रा, उसी तरह हमें ये करना है. यहाँ पे भी एल्बो से लेके आपके शोल्डर तक जमीन को समांतर हो, हमें ड्रॉप नहीं करने. एल्बो, ईयर टू हिल अलाइनमेंट. दृष्टि दोनों हाथों के ऊपर. chin पैरेलल टू ग्राउंड एंड होल्ड. 1 2 3. आपकी क्षमता के अनुसार करना है. एक्सहेल. दोनों हाथ क्रॉस करने. फिर से राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड नीचे. बेंड फ्रॉम योर एल्बो एंड अभी लेफ्ट हैंड नीचे रहेगा. एल्बो टू शोल्डर इन वन लाइन. कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीथिंग. chin पैरेलल टू ग्राउंड. 1 2 3. डीप इनहेल, एक्सहेल. दोनों हाथ सामने हैं, दोनों हाथ पीछे लेके जाइए. हथेलियां पीछे की तरफ. दोनों हाथ जमीन को समांतर, हथेलियां पीछे की तरफ रहेगी इस तरह. और दोनों हाथ पीछे लेके जाइए. और हो सके तो नमस्कार कीजिए. और अगर नमस्कार नहीं हो रहा है तो आप हाथ इस तरह पकड़ सकते हैं. फिर ध्यान रखना है कि आपको शोल्डर ओपन करने. जो नमस्कार कर सकते हैं वो सभी नमस्कार कीजिए. एंड अगेन ear to heel and heel to ear alignment. Chin parallel to ground. Open your shoulders. Concentrate on your breathing. 3 4 5. Exhale and slowly relax. Roll back your shoulders. अभी जितने भी हमने सूक्ष्म व्यायाम किए वो सभी लोग घर पे रोज करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके शोल्डर्स के लिए और नेक के लिए. सर्वाइकल में हमेशा तनाव रहता है मोबाइल के कारण. सिर्फ एक ध्यान रखना है कि जब आप ये करोगे जिसमें chin पैरेलल टू ग्राउंड नहीं हो रही है, तो सर के ऊपर आप छोटी सी डायरी या कुछ रख सकते हो
प्रतीक जो है वो आपको डीप में वो सिखाएंगे बाद में। हर सूक्ष्म व्यायाम के बाद, जिसमें हम हमेशा बताते हैं कि हिल टू ईयर एक रेशा में हो, बहुत बार क्या होता है कि लंबर में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बेंड करते हैं या सर्वाइकल में। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण आसन है, दोनों पैरों में अंतर रखना है। ये सूक्ष्म व्यायाम भी है, आसन भी है, जो है पर्वतासन। रेज योर हैंड, इनहेल। बट इसे ध्यान से देखिए क्या करना है। सबसे पहले पर्वतासन, सीधा ऊपर नहीं जाना है। सबसे पहले शोल्डर के लेंथ में दोनों हाथ पैरेलल टू ग्राउंड, हथेली आकाश की तरफ। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि ऊपर जाते समय कमर से लेके लास्ट रिब टू शोल्डर, ये 2 खिंचाव होने चाहिए। इनहेल और देन हाथ का पूरा नमस्कार स्थिति। इसमें हाथ पूरी तरह नमस्कार करने हैं। और अगर आप साइड से देखोगे तो आपको ज्यादा आगे भी नहीं आना है या पीछे भी नहीं जाना है, दोनों पैरों पे समान बल। एंड देन चिन पैरेलल टू ग्राउंड। सबसे महत्वपूर्ण है चिन पैरेलल टू ग्राउंड। कुछ लोगों को नेक के कारण हाथ ऊपर नहीं ले जा सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा एल्बो में आप रिलैक्स कर सकते हो, बट नमस्कार में रिलैक्स मत कीजिए। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग। लास्ट राउंड, डीप इनहेल, एक्सहेल, चिन पैरेलल टू ग्राउंड। एंड देन दोनों हाथ कमर पे रखिए, जंप एंड होल्ड। 1 2 3। एक्सहेल, समस्थिति, रोल बैक योर शोल्डर। नाउ अभी हम और एक करेंगे जो है हमारे स्पेसिफिक नंबर के लिए, जिसमें स्टिफनेस होता है। इसमें ध्यान ये देना है कि हमें बहुत आगे भी नहीं, मतलब फॉरवर्ड बेंड भी ज्यादा नहीं करना है और बैक बेंड भी नहीं करना है। हिल टू हिप, ये अलाइनमेंट हमें वैसी रखनी है, ज्यादा आगे भी नहीं जाना है, पीछे भी नहीं जाना है। सेम फोरफुट एंड हिल, इस पे भी समान बल हो। सबसे पहले दोनों पैरों में अंतर लेंगे। कितना अंतर लेंगे? जितना आपके शोल्डर में हो। पैरों की उंगलियां सामने की तरफ। अगर आप शोल्डर से ज्यादा लेते हो तो दोनों पैर बाहर की तरफ थोड़े मुड़े हुए, क्योंकि हम लोअर बॉडी पे काम नहीं कर रहे, तो आपके कंफर्ट के अनुसार आप अंतर ले सकते हो। शोल्डर कितना है उससे ज्यादा। देन रेज योर हैंड, दोनों हाथ ऊपर खींचिए। इनहेल, कमर से लेके शोल्डर तक पूरा खिंचाव ऊपर की तरफ हो। एक्सहेल करते समय चिन पैरेलल टू ग्राउंड हो और दोनों हाथ पीछे की तरफ लेके जाइए। दोनों अंगूठे आपके लंबर के ऊपर रखिए, दोनों अंगूठे आपके लंबर के ऊपर और बाकी चारों उंगलियां आपके कमर के ऊपर। हिल टू हिप अलाइनमेंट, शोल्डर, ओपन योर शोल्डर। नाउ इनहेल, चिन अप और एक्सहेल करते हुए ध्यान देना है कि हमें सिर्फ अंगूठों को थोड़ा सा पुश करना है, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा। हम सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं। रिस्पेक्ट योर बॉडी, लिसन टू योर बॉडी एंड थोड़ा सा पुश करना। नेक को रिलैक्स नहीं करना है। एंड होल्ड 1 2 3। अभी हम जितना पीछे गए उतना ही आगे जाना है, ज्यादा नहीं। इनहेल, कम अप और एक्सहेल, स्लोली थोड़ा आगे जाना है और ब्रीथ। 1 2 3। Inhale, come up and exhale again. Push your both the thumb and hold. 1 2 3. Inhale, come up, exhale and hold. 1 2 3. Inhale, come up, exhale. फिर से दोनों हाथ सामने, slightly chin up and relax. Concentrate on your breathing. 1. 10 breathe. 2 3 4 5 and 10. तो ये कुछ सूक्ष्म व्यायाम थे जो आपके लंबर के लिए, शोल्डर के लिए और नेक के लिए, हर हमारे अंग प्रत्यंग और बाह्य अंग, इस सभी के लिए आवश्यक कुछ सूक्ष्म व्यायाम है। तो वो सूक्ष्म व्यायाम हम हर रोज सीखेंगे। प्रतीक जो है वो सिखाएंगे, स्मिता भी है वो भी सिखाएंगे। लास्ट हम जाने मतलब ये सूक्ष्म व्यायाम खत्म होने से पहले एक छोटा सा टेस्ट हम लेंगे। जिन लोगों को घुटनों में कोई समस्या नहीं है वो करेंगे, जिनको घुटने में समस्या है वो नहीं करेंगे, वो सिर्फ देखेंगे। आसन से हमें क्या प्राप्त होता है? आसन से हमें या तो योग अभ्यास है उसमें हमें स्थिरता, दृढ़ता और अंग लाघवम यानी शरीर में हल्कापन आता है। तो हमें
दूसरी चीज उठानी नहीं है, हमारा खुद का ही शरीर हम उठा पा रहे हैं क्या, नहीं। और हमें देखना है कि जब आप 15 दिन ये सीखोगे और उसके बाद निरंतर इसका अभ्यास करोगे प्रतिदिन, तो 2-3 महीने के बाद जो हमने आज ये टेस्ट ली है और फिर 1-2 महीने के बाद आप ये खुद करोगे तो आपको खुद में एक चेंज आएगा। तो सबसे पहले हमें समस्थिति में रुकना है। देन राइट लेग कृष्ण पोजिशन, भगवान कृष्ण जैसे खड़े रहते हैं उस तरह। और ध्यान देना है कि जिनको घुटने में प्रॉब्लम वो नहीं करेंगे, बाकी लोग करेंगे, ठीक है। सभी कर सकते हैं बट स्लोली करना है। आइडियली हमें कैसे करना है देखिए। देन एक्सेल करते हुए हमें शोल्डर ड्रॉप नहीं करने, इसलिए हाथ आगे रखने, एक्सेल और नीचे बैठना है। ओके, नाउ इनहेल, हाथ सामने। अभी लेफ्ट लेग राइट साइड में, नीचे बैठना है और फिर से ऊपर। ओके, दिस साइड इनहेल एक्सेल, इनहेल और एक्सेल का ध्यान रखिए। इनहेल कम अप and exhale, go down. Inhale, come up. Exhale, go down. Inhale, come up and exhale and relax. तो हम जब नीचे जाते हैं तो एकदम से नीचे जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे शरीर को आज हमने क्या किया, इसका मैं इसके पीछे का साइंस बताता हूँ। कमर से लेके शोल्डर तक जो हम शरीर को ऊपर खींचते हैं, उससे हमारे शरीर को एक खिंचाव मिलता है, जो खिंचाव बहुत आवश्यक है। जब हम नीचे जाते हैं तो पूरा शरीर नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे शरीर को आदत है वो खिंचाव की, तो इसलिए हम कंट्रोल करते हुए नीचे जाएंगे और शरीर में अंग लाघवम के कारण इनहेल हम ऊपर आ सकते हैं। इसमें को कहाँ पे भी स्पाइन पे हमें ज्यादा जोर नहीं देना है, इट्स वेरी इजी, ठीक है। तो 1-1.5 महीने के बाद हम आपको पूछेंगे, 15 दिन में आपको प्रैक्टिस भी करके लेके जाएंगे कि क्या क्या सूक्ष्म में आसन है। ओके, thank you Suhani ji, thanks everyone. Thank you so much, sir. Now I will request Nita ma'am to proceed ahead with closing prayer. Then we will be having question answer session. So over to you, Smita ma'am. Yeah. I would request all of you to sit down, and always do not forget to take a mat. So we are going to end up the session with the 3 times Omkar and Shanti mantra. That will end up the session. And it was really wonderful stretching, sir. Thank you so much. So dear all, now you have come to know we have blessed this Yoga Darshan Training and Research Institute is blessed with 2 doctors, wonderful teacher. Now we have seen our Harish sir. He's our great guru. Who is always guiding us on this benefit. And yoga is a life science, so you should take this opportunity and do not miss any of the session out of this 15 days and be there with us always. So I would request all of you to sit in any meditative asana again, Sukhasana, Padmasana. Again, your spine should be straight with your head in line, alignments. Always check your alignments. Your shoulders broad, chest expand, hands in Dhyana Mudra, 3 times Omkar chanting. Makar should be longer. Always keep in mind. And a beautiful smile on your face. Inhale deeply. Exhale. One more time, inhale. Get settled down once again. Exhale. Inhale deeply, we'll chant Omkar. Inhale. So this practice of Omkar will really improve your lungs capacity. Right now you may not be able to keep longer your Makar, but with the practice definitely you will be. And observe these observations, keep observing,
till the end. After 15 days, definitely you will find some change. One more time, inhale deeply, last Omkar. Inhale and exhale. Join your palms together in Namaskar Mudra. Close to your heart. Inhale. Shanti Mantra. Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryam Karvavahe Tejasvinavadhitamastu Mam Vidvishavahe Shanti, Shanti, Shanti. This Shanti mantra tells us, let's come together, work together, nourish together, and stay happy all the time with peacefully and enjoy the blissful life, keeping your mind calm and quiet. Just observe your breaths. Prayers helps to calm down your mind. Will boost your energy levels. It will help to focus and help to achieve your goals. Once you concentrate on your goals, try to concentrate on your goals ahead. Always focus your mind. Keep this practice. Definitely you are going to be successful in your life. Gently rub your palms together. Place your palms on your eyes. Give a gentle pressure on your eyes. See the darkness behind your palms? Do not open your eyes. Slowly and gently release the pressure. Come towards the brightness, the knowledge. Namaste. Go down to the floor. ये धरती माता जो हमें धारण करती है, उसे वंदन करना है. Namaste. So let's end up the session, today's session, and be ready, get ready for tomorrow's next session. And hope you all are enjoying the session, and be there with us forever. Stay blessed, stay healthy and happy. A wonderful day ahead for everyone. Namaste. Thank you, Smita. Thank you so much for closing prayer. Now I will request Shilpa ma'am to go for concluding this session. I request participants to ask any questions if they have in mind. From tomorrow, we will start with our actual session, starting from Sukshma Vyayam, followed by Asan and remaining sessions. So thank you everyone from my side, and now over to Shilpa ma'am.
यस, थैंक यू सुहानी। मैं सभी का ज्यादा समय नहीं लेने वाली हूँ, जस्ट सिर्फ आपको कल के लिए आपको क्या प्रिपेयर करना है वो बता रही हूँ कि कल जैसे आप आए थे आज वैसे ही आपको आना है। मैट आपके साथ रहेगी, लूज क्लोथिंग रहेगा, आपका लूज क्लोथ्स रहेंगे और उसके साथ साथ पेट आपका एम्प्टी रहेगा, स्टमक एम्प्टी, बॉवेल्स भी एम्प्टी रहेंगे, क्लियर करने हैं और आपका मूड अच्छा होना चाहिए। और इस सभी के लिए जरूरत है कि रात को आप समय पे सो जाए। तो सभी को रिक्वेस्ट है कि आज रात को सभी समय पे सो जाएंगे, 10 बजने के आसपास, लेट नहीं करेंगे। तो कल सुबह आपकी नींद अच्छे से खुलेगी, अपने आप खुलेगी और अपने आप को आप फ्रेश फील करोगे। ओके, तो कल सूक्ष्म व्यायाम के साथ शुरू करने वाले हैं और सभी साथ में एक चेयर रखेंगे, अगर जरूरत पड़े तो आप उसका इस्तेमाल करने वाले हो। ओके, तो साथ में सभी के एक चेयर रहेगी, चेयर या दीवार भी है तो भी आप उसका इस्तेमाल सपोर्ट के लिए सिर्फ आपको चाहिए तो कर सकते हो। सीनियर सिटीजन्स या किसी को कुछ तकलीफ है सर्वाइकल या घुटने की या कमर की या कोई और तकलीफ है तो वो बिना जाने कुछ भी आसन या व्यायाम नहीं करने वाले हैं। वो देखेंगे आपके कंफर्ट जोन में है तो ही आप करोगे, आप आसानी से कर सकते हो तो ही करेंगे। और जिनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है वो प्रॉपरली पूरी तरह से अपने आप को इन्वॉल्व करते हुए ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान रखते हुए सारे आसन और व्यायाम करने वाले हैं। ओके, यस, थैंक यू सो मच। So see you tomorrow at 7:30. Thank you. Thank you and good day. Thank you, Shilpa ma'am. Go home, stay So safe, much. happy. Tomorrow's sessions will be on Zoom platform itself. Those who have registered, they will get the link. They will be added into a group which will be used for communication and question answer. So next sessions will be on Zoom platform only. So if you have any questions, you can please ask in chat box. Shilpa ma'am, would you like to answer about recordings? Yes, रिकॉर्डिंग हमारे पास जैसे आता है हम ग्रुप पे डालेंगे, जो भी रहेगा आगे का हम आपको बता देंगे। ओके, थैंक यू। So thank you everyone. You can ask questions in the group as well, WhatsApp group which we have already created for participants who have already registered. Those who want to register, links are open. You can register yourself, and for 15 days, fees of this 15 days session is only 500. So we're gonna enjoy 15 hours of short course where we will learn and practice. So that's it. Thank you. Thank you, everyone. I wish everyone a peaceful and great day ahead. Thank you, everyone. See you tomorrow. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Yes. You can share this information with your parents, family. Specifically, session is worth for senior citizens, those who are in 40 to 60. So it's very helpful. In fact, it is helpful for everyone, but especially senior citizens, they have lots of issues. So they can start with Sukshma Vyayam. So slowly, they will recover whatever problems they are facing. So thank you everyone for joining. Thank you. Yes, okay. Sometime there might be some audio issue. So since it is monsoon season, so we can expect some voice delay or network issues. It's all right. So if you have missed some part of the session, please let us know. We'll try to cover your queries and we'll try to repeat the instructions in the chat box. Yes, thank you. Thank you, everyone. Okay. Thank you for all the responses and chats. Thank you. Thank you. Good day, everyone. Bye-bye. Good day. Bye. Bye. Yeah, let's leave the session. Yeah, thank you. Thank you, everyone. Have a wonderful day ahead. Hoping to see you all tomorrow.
Thank you, everyone. I request participants, they can leave the meeting for now. The session is over for today. Hoping all you to see you tomorrow. Thank you everyone for joining. Wonderful. I hope you have enjoyed and looking forward to learn basics and fundamentals of yoga. Thank you everyone. Thank you everyone. Please feel free to leave the session. Thank you everyone. Thank you Vimal ma'am, Sudhir sir, Madhuri ma'am, Radhika ma'am, Shweta ma'am, Anil sir. Thank you everyone. Thank you. Have a wonderful day ahead. See you tomorrow at sharp. Session will start at sharp 7:30. You can log in 5-10 minutes before. Senior citizens can keep supporting chair or they can sit near wall. Thank you Radhika ma'am. Thank you Madhuri ma'am. Thank you Vimal sir. Thank you Anil sir. Thank you everyone. Please feel free to leave the session. Thank you. Thank you everyone. Thank you. Thank you everyone. Thank you Shweta ma'am.